welcome. You're watching Next IS English. Today we are going to talk about a very important news that is coming up from Telangana. Okay, Telangana is yet to receive 5 another GI tags. Yes, you're absolutely right. 5 more GI tags likely for Telangana soon. GI tags are geographical indication tags. Now Telangana is stepping up the efforts to safeguard its traditional crafts and region specific products by securing geographical indication tags. Okay, so Telangana is going to safeguard, Telangana safeguard करने वाला है अपना traditional craft और region specific products by securing GI tags, which is geographical indication tags for them. Okay, it has already filed applications for several items and 5 of them are Narayanpet jewelry making, Hyderabad pearls, Banjara tribal jewelry, Banjara needle craft and batik paintings are in the final stages of approval. All right. So almost they are going to get almost approved, and comprehensive documentation and field studies for these products have also been completed according to the official sources. So a comprehensive documentation field studies for these products have been completed according to the official sources. Moving forward, let us talk more about the same pressing issue. Moving forward, GI tags in Telangana. Let us understand what GI tags are and what is the history with Telangana. So, GI tag is provided under the Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act 1999. This is the very important point for prelims perspective. Prelims perspective से ये pointers बहुत ही ज़्यादा important है कि किस act के तहत ये geographical indication दिया जाता है. तो the act is Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act 1999. Now, it protects goods whose quality and reputation are linked to a specific geography. किसी भी geography की specific रेपुटेशन होती है अगर किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी की, तो उसको हम ये उनको प्रोटेक्ट करता है ताकि उसी जगह की वो स्पेसिफिक उसकी वो रहें. ठीक है, तो इसीलिए ये प्रोटेक्ट करता है उन गुड्स को जिसकी क्वालिटी और रेपुटेशन लिंक होती है किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफी से, किसी स्पेसिफिक जगह से. ठीक है, नाउ द जीआई टैग्स हेल्प इन, किस चीज़ में जीआई टैग्स हेल्प करते हैं? लेट अस टॉक अबाउट दैट. रूरल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज के प्रिजर्वेशन में हेल्प करते हैं, और प्रमोशन ऑफ वोकल फॉर लोकल को भी ये प्रमोट करते हैं. ठीक है, तेलंगाना हैज 18 जीआई टैग्स प्रोडक्ट्स. नाउ अभी तक तेलंगाना के पास 18 जीआई टैग्स के प्रोडक्ट्स हैं और इसमें ऐड होने वाले हैं 5 मोर. ऑलराइट, तो 5 मोर प्रोडक्ट्स इसमें ऐड होने वाले हैं जो मतलब प्रोसेस में चल रहे हैं जीआई टैग की रिकॉग्निशन मिलने में. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस टॉक अबाउट द Narayanpet jewelry making. तो जो पहला प्रोडक्ट है which has come up, which is going to be recognized as a GI product, that is Narayanpet jewelry making. It originates from Narayanpet district of Telangana. कहाँ से originate होता है ये? Narayanpet district तेलंगाना से. The traditional craft practices by local artisan communities. ये एक बड़ा traditional craft practice है local artisan communities के द्वारा, and this is known for हैंडक्राफ्टेड टेक्निक्स, हाथ से बनाई हुई टेक्निक्स के लिए जाना जाता है. रीजनल मोटिव्स एंड ट्रेडिशनल डिजाइंस और रीजनल मोटिव्स के लिए जाना जाता है. ज्वेलरी रिफ्लेक्ट्स डेक्कन कल्चरल इन्फ्लुएंस, डेक्कन इन्फ्लुएंस को ये रिफ्लेक्ट करती है इसकी ज्वेलरी, जैसे उस टाइम पे हुआ करता था मे बी. ठीक है, जीआई टैग की सिग्निफिकेंस क्या है? प्रिवेंट्स मास प्रोडक्शन इमिटेशन. जो बहुत ज़्यादा देखिए, किसी एक जगह पे कोई चीज़ बनती है, इफ अ प्रोडक्ट इज स्पेसिफिकली मेड इन वन पर्टिकुलर प्लेस, अ लॉट ऑफ पीपल ट्राई टू imitate that in other places as well. All right, so for example, if there's a particular jewelry coming up from South India, okay, in North India also people try to imitate that and make copies of that, but the product should be the specific product comes from that specific place, and that is what it prevents mass production of इमिटेशन प्रिवेंट करता है. ये सपोर्ट्स MSMEs एंड लोकल आर्टिसंस, जो छोटी कंपनीज होती हैं, लोकल आर्टिसंस होते हैं, स्मॉल कंपनीज, लोकल आर्टिसंस, इट सपोर्ट्स देम. इनकरेज करता है हेरिटेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट को इनकरेज किया जाता है. मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस टॉक अबाउट द
हैदराबाद पर्ल्स, दूसरा जो प्रोडक्ट है जो ऑलमोस्ट जीआई टैग इसको मिलने वाला है, हैदराबाद पर्ल्स। आपने बहुत समय पहले सुना होगा कि हैदराबाद के पर्ल्स बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करते थे एक पॉइंट ऑफ टाइम में। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। हैदराबाद हैज़ बीन मेजर पर्ल ट्रेडिंग सेंटर सिंस द निज़ाम एरा। निज़ाम के एरा से हैदराबाद एक मेजर पर्ल ट्रेडिंग सेंटर रहा है। सिंस द निज़ाम एरा हैदराबाद हैज़ बीन अ मेजर पर्ल ट्रेडिंग सेंटर। पर्ल्स आर वैल्यूड। वाई आर दीज पर्ल्स वैल्यूड सो मच? फॉर देयर हाई क्वालिटी, अपनी हाई क्वालिटी के लिए, स्किल्स ड्रिलिंग एंड पॉलिशिंग, स्किल्ड ड्रिलिंग और पॉलिशिंग के लिए, जिस तरीके से उसकी ड्रिलिंग होती है, उसकी पॉलिशिंग होती है, इसीलिए मोस्टली एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल पर्ल मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट्समैन, मोस्टली एसोसिएट किया जाता है ट्रेडिशनल पर्ल मर्चेंट्स और क्राफ्ट्समैन के साथ। और जीआई टैग की इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये प्रोटेक्ट करता है हैदराबाद की रेपुटेशन, मतलब रेपुटेशन ऑफ हैदराबाद पर्ल्स, हेल्प्स इन एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये, और स्ट्रेंथन करेगा इंडिया के हैंडीक्राफ्ट ट्रेड सेक्टर को। इट विल स्ट्रेंथन इंडियाज हैंडीक्राफ्ट ट्रेड सेक्टर। मूविंग ऑन टू द थर्ड प्रोडक्ट व्हिच इज बंजारा ट्राइबल ज्वेलरी। नाउ दिस ट्राइबल ज्वेलरी, as you see, looks so pretty on this woman sitting here, and that is one of the reasons why it wants a geographical indication tag, practiced by the Banjara tribal community. ये बंजारा ट्राइबल कम्युनिटी मेक्स दिस ज्वेलरी एंड द कम्युनिटी इज लिस्टेड एज scheduled tribe. Now jewelry is made using silver, old coins and beads and shells. इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके बनाई जाती है ये ज्वेलरी by the Banjara tribal community. Designs reflect, what do the designs reflect? The nomadic lifestyle and tribal identity and symbolism. Nomadic lifestyle reflect करता है, tribal identity और symbolism को reflect करता है. Now let us talk about the GI tag significance. Preserves tribal cultural heritage. Tribal cultural heritage को preserve करता है. Provides economic security to tribal artisans. जो tribal artisans हैं उनको economic security देता है और align करता है inclusive growth and tribal welfare से. ये बहुत ही ज़्यादा again becomes an important point. अलाइन करता है इंक्लूसिव ग्रोथ और ट्राइबल वेलफेयर से. मूविंग फॉरवर्ड टू द फोर्थ प्रोडक्ट विच इज बंजारा निडल क्राफ्ट. अब ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी आर्ट ऑफ बंजारा वुमेन. अगेन Banjara women, this tribal culture comes with a rich art heritage, and ये बंजारा वुमेन के द्वारा की गई एम्ब्रॉयडरी आर्ट है. यूज़ करता है ये ब्राइट फैब्रिक्स, मिरर वर्क, ज्योमेट्रिक एंड सिम्बॉलिक पैटर्न्स, एंड रिप्रेजेंट करता है इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट. अगेन दिस इंपॉर्टेंट पॉइंटर, रिप्रेजेंट करता है इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट को. और इसकी जीआई टैग सिग्निफिकेंस ये है कि प्रिवेंट करता है कल्चरल अप्रोप्रिएशन, प्रमोट करता है विमेन लेड लाइवलीहुड. अगेन विमेन एम्पावरमेंट को भी ये प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और रूरल इकोनॉमी को. एंड अगेन मूविंग बैक, वी विल मूव बैक वन पॉइंटर एंड सी inclusive growth and tribal welfare. That is exactly what is happening here also. Inclusive growth and tribal welfare. यहाँ पे भी inclusive growth and tribal welfare. यहाँ पे भी एक पॉइंटर लागू होता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ और ट्राइबल वेलफेयर को ये प्रमोट करता है. ऑल राइट, okay, so again moving forward to the fifth and the last product which is going to be getting a GI tag in Telangana. Textile art using wax resist dyeing technique. Now this beautiful art, this beautiful picture that you are looking at, it uses wax resist dyeing technique. All right, ये wax resist dyeing technique से यूज़ की जाती है. इसमें डिज़ाइंस क्रिएट करे जाते हैं वैक्स अप्लाई करके. ठीक है, वैक्स आप सभी जानते होंगे, यू नो, कैंडल वैक्स एंड ऑल दीज थिंग्स. डाइंग द फैब्रिक को वैक्स अप्लाई करके डाई किया जाता है. रिमूविंग वैक्स टू रिवील पैटर्न्स, और उसके बाद वैक्स को रिमूव किया जाता है पैटर्न्स को रिवील करने के लिए. ऑलराइट, नाउ दिस प्रैक्टिस इन पार्ट्स ऑफ तेलंगाना स्पेशली बाय आर्टिसन क्लस्टर्स. तेलंगाना के पार्ट्स में प्रैक्टिस किया जाता है ये, स्पेशली किसके द्वारा? आर्टिसन क्लस्टर्स के द्वारा. इसकी जीआई टैग सिग्निफिकेंस ये है कि प्रोटेक्ट करता है ट्रेडिशनल टेक्सटाइल नॉलेज को. टेक्सटाइल नॉलेज को ये प्रोटेक्ट करता है, इनहांस करता है ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को, और सपोर्ट करता है सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली आर्ट फॉर्म्स को.
सो ये थे हमारी 5 GI टैग प्रोडक्ट्स. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द MCQ फॉर रिविजन. देखते हैं कि आप कितना अटेंटिवली सुन रहे थे. लेट्स सी हु वाज लिसनिंग वेरी अटेंटिवली थ्रू आउट द वीडियो. Which of the following products is associated with Banjara community? Which of the following products is associated with Banjara community? A. Batik paintings. B. Hyderabad pearls. C. Banjara needlecraft. D. Narayan Peeth jewelry. Let me know the correct answer in the comment section below. Let's see कौन guess कर पाता है answer. And that is it for today. I will see you in another deep dive video. Until then, stay curious, stay informed. Bye bye. Take care.